Hello learners, here is an important update for all of you. KVS and NVS, that is केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति, दोनों ने अपना जॉइंट डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है एंड इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज हु एस्पायर टू बिकम टीचर्स, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं and you can apply for various teaching and non-teaching staff as per your eligibility. So these are the important websites where you can find the detailed notification and also how to apply and basically the website to apply, right? So CBSE is responsible for recruitment and there are various post wise and category wise breakup of tentative vacancies. ठीक है, काफ़ी सारी पोस्ट हैं such as assistant commissioner, then principal, then vice principal and KVS and NVS की अलग अलग यहाँ पे vacancies आपको given है, right? PGTs, if I specifically talk about post graduate teachers, तो यहाँ पे post graduate teachers के लिए भी subject specific vacancies given है. And talking about इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली, तो इकोनॉमिक्स में भी आप देख सकते हैं जस्ट फॉर केवीएस इट इज 129 टोटल वैकेंसीज. ठीक है, टोटल वैकेंसीज ऑब्वियसली डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज एंड एनवीएस के लिए देयर इज 148 वैकेंसीज. सो again I'm saying a very good opportunity, you must apply if you are eligible for it, right? So now PGT, then TGT, there are a number of posts here. You can check in the detailed notification. इसके जो भी eligibility criterias हैं, qualifications हैं, आप notification से read करके as per your eligibility you can apply for these posts, right? Now if I talk about the pay scale, है ना, pay scale सबसे पहले हम check करते हैं कि pay scale बढ़िया है तभी apply करेंगे. So see, this is how the pay scale is divided for various posts, है ना. यहाँ पे this is for assistant commissioner, then for principal, and along with this the eligibility criteria is also written. So coming to the PGTs, that is for postgraduate teachers, the pay scale will be equals to level 8, that is between rupees 47,600 and 1,51,100, right? And the maximum age limit to apply for this is 40 years. Also the eligibility criteria, that is essential qualification, educational qualifications भी यहाँ पर लिखी हैं. Basically you need masters and BEd degree. ठीक है, it could be integrated degree or it could be different as well. मतलब अलग अलग, पहले आपने BEd किया हो फिर masters किया हो या masters किया हो फिर BEd किया हो, whatever, but you need both of these and दोनों में at least 50% marks आपने score करे हो, right? Okay. Now this 11th point is very important for us. Mode of selection या examination scheme क्या रहेगी? So basically this exam is divided into 3 parts. Tier 1, Tier 2 and an interview. ठीक है, Tier 1 जो आपका रहेगा that is qualifying in nature. That means आपको कुछ minimum criteria, minimum score दिया जाएगा that you have to score, and if you score that, if you clear that Tier 1, you will be eligible to appear for Tier 2. ठीक है, एंड टीयर 2 अगर आप क्लियर करते हैं तो देन यू कैन अपीयर फॉर इंटरव्यू. फाइनल जो मेरिट रहेगी उसमें टीयर 1 के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे बिकॉज इट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर. ठीक है, आपको जस्ट उसको क्वालिफाई करना है सो दैट यू कैन अपीयर फॉर टीयर 2, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम. ठीक है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट रहेगी उसमें 85% वेटेज इज गिवन टू टीयर 2 एंड 15% टू इंटरव्यू. ठीक है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा. सो बेसिकली अगर हम टीयर 1 की बात करें, एज आई सेड इट इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव मोड में रहेगा. OMR पर आपको ये एग्जाम मतलब OMR शीट पे आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं. ठीक है, सो टीयर 1 इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स अगेन. जनरल रीजनिंग, फर्स्ट पार्ट इज जनरल रीजनिंग, 20 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन इंग्लिश एंड देन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज. इंग्लिश के साथ साथ एक और आपको लैंग्वेज चूज करनी होगी. 2 घंटे का ये एग्जाम रहेगा. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है एंड टोटल मार्क्स कितने हैं? 300. दैट मीन्स ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली ये लैंग्वेजेस का भी गिवन है, दैट इज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज. इनमें से कौन सी आप चूज कर सकते हैं. सो जनरली पीपल गो फॉर हिंदी बट देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल. यू कैन जस्ट fill whatever is like you are eligible for or whatever suits you, right?
चलिए, अब उसके बाद एक्सपेक्टेड नॉलेज की अगर हम बात करें टियर 1 में, तो इट इज़ अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एज इन बचपन से लेके अभी तक टियर 1 इट इज़ बेसिक इन नेचर, मतलब आप देख रहे हैं सब्जेक्ट्स पीस में जो हैं दीज आर ऑल बेसिक। जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। सो बचपन से लेके हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है यू हैव टू कवर ऑल दैट, राइट। नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें, सो येस देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग टियर 1 में। देयर इज 1/3 नेगेटिव मार्किंग। 1/3 का क्या मतलब है? 1 मार्क्स। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, तो उसमें से 1/3 इज 1 मार्क्स, ठीक है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए टियर 1 विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर टियर 2 इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:10। सो 1:10 के रेशियो में स्टूडेंट्स को those who will clear tier 1 इस रेशियो में बेसिकली स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा so that they could appear for tier 2, right? Okay, and now this is the division for tier 2. tier 2 जैसा कि आपको पता है this will be subject specific paper। जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है उसमें ये पेपर रहेगा। It will be of 2.5 hours, 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। 70 क्वेश्चंस, 70 का डिविजन किस तरीके से किया है, 60 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एंड 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो 60 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क ईच रहेंगे एंड डिस्क्रिप्टिव वाले टोटल 40 मार्क्स के रहेंगे, राइट। चलिए, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है अगेन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4, दैट इज 0.25, राइट। Now this is the process of allocation of candidates to KVS and NVS। like आपको KVS अलॉट होगा या NVS अलॉट होगा, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कौन सा कब कैसे अलॉट होगा। so this is all, you can read it, right? and these are some important notes। so provisions, provisions for differently abled candidates, whoever belong to these categories can read this in the डिटेल्ड नोटिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैम एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया 3 स्टार्टिंग में वेबसाइट्स दिखाई थी, उसमें बेसिकली दिस इज इनमें से इन वेबसाइट्स पे जाके यू कैन फाइंड द एप्लीकेशन फॉर्म। पहले इंस्ट्रक्शंस ज़रूर रीड करना, डिटेल नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर चेक कर लेना एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम थ्रू दीज वेबसाइट्स, ठीक है। उसके बाद now we'll check about the pay scale we have covered। examination fee, right? so examination fee various post wise alag alag fees rahegi and it is divided into 2 parts, examination fee and processing fee। so this is all the structure it is। PGT की अगर हम बात करें so examination fee is ₹1500 and processing fee is of 500 and there are some categories exempted from examination fees। see these are the categories SC, ST, PWBD and ex-serviceman category। इन लोगों को examination fee पे नहीं करनी है, they just have to pay a processing fee of ₹500, right? so this is all mode of payment। ये सारे instructions examination form fill करने से पहले एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। now next important thing is important dates। so 14th November से ये basically exam form एक्टिव हो चुके हैं, आप अभी फिल कर सकते हैं एंड लास्ट डेट इज 4th December। सो लर्नर्स वी डोंट हैव टू वेस्ट फॉर द लास्ट डेट का हम बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, हम जल्दी से जल्दी लिंक अभी एक्टिव है सो हम जल्दी से जल्दी एग्जाम फॉर्म टाइमली फिल करके एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल, देयर आर नाउ सम जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये सब आप लोग रीड कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि भाई मैम तैयारी कैसे करनी है, प्रिपेयर कैसे करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिकॉज द एग्ज़ाम पैटर्न हैज़ ऑल्सो चेंज्ड, है ना। अभी इस बार एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा हमने चेंज देखा है, तो लर्नर्स की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है जब से ये नोटिफिकेशन आया है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि मैम कैसे तैयारी करें, व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू कवर दी सिलेबस एंड क्या क्या चीज़ें हमें करनी रहेंगी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, right? We have got you covered। so on high demand we have already launched a course of KVS PGT tier 1, ठीक है। tier 1 दैट इज आपका जो जनरल पेपर रहेगा उसके लिए आपको डिटेल्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे, देन यू विल गेट डाउनलोडेबल PDF नोट्स, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में ये रहेंगे। देन MCQ प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, विल बी अवेलेबल फॉर यू फॉर योर डाउट्स ऑन WhatsApp, ठीक है।
इसके अलावा PYQs भी ज़रूर करवा दिए जाएंगे, PYQs विथ सोल्यूशन एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. And if you are an economics student, so you can take our combo course, that is KVS PGT Economics, consisting of Tier 1 and Tier 2. Tier 2 की अगर हम बात करें, so ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही पेपर की तैयारी कराई जाएगी. ऑब्जेक्टिव में you will get lectures, notes, MCQ practice, PYQs, and for subjective, once you clear Tier 1, you will be provided with मॉडल आंसर्स एज वेल. इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में ये मॉडल आंसर्स रहेंगे, राइट. सो लर्नर्स, without wasting much of your time, I will suggest you that you should start preparing from today itself. जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम फॉर्म फिल कीजिए and you can start your preparation. सो MS स्टडी गुरु एप्लीकेशन पर जाके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं. सो आई एम अगेन सजेस्टिंग यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ और एज सून एज पॉसिबल, so that you can excel in your exam. All the best, learners. Thank you so much.